Hello everyone, myself Priyanka Sinha and I'm back with next video of chapter Structure of Atom. See, in previous video we already talked about J.J. Thomson atomic model. क्या पढ़ा था हमने उसमें? The whole atom can be considered as a positively charged sphere and electrons are embedded in it, right? Okay, after that we discussed this also. This electron and proton are actually equal in amount. That's why the overall atom is electrically neutral. ये सारी बातें हमने पढ़ी, but J.J. Thomson was not able to explain the arrangement of electron and proton inside the atom. तो ये मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, to explain the arrangement of electron and proton, we are going to discuss about Ernst-Rutherford model. You know why? Because Ernst-Rutherford was actually very keen to know how this electron and proton are arranged inside the atom. So to know this, he did an experiment. So his experimental setup is named as Ernst-Rutherford's gold foil experiment. Now, let's talk about Ernst-Rutherford gold foil experimental model. Ernst-Rutherford designed an experiment. Why he designed? We discussed this. Only to know the arrangement of electron and proton inside the atom, right? Okay. In this experiment, the fast moving alpha particles is actually bombarded over a gold foil. यहाँ पर दो चीजें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. Why he took the gold foil and what is this alpha particle? So let's talk about that first. सबसे पहले बात करते हैं why he took the gold foil. See, we know in a modern periodic table we have total 118 elements, right? Okay. Among this 118 elements, few elements are metal, few elements are non-metal and few elements are metallite, right? Okay. So metal have a tendency कि अगर आप किसी भी metal को beat करते हो, so it can convert into thin sheet, right? आपको याद होगा, we discussed this already in 8th standard. So metal have a tendency, when you will beat it, then it will convert into a thin sheet. This property of metal is defined as malleability, right? So what is malleability? If you beat in metal, then of course it will convert into a thin sheet. So this is malleability. Clear? Okay. So among all the metals, if we choose the gold metal, then it is the most malleable metal. So this is the reason only Ernst-Rutherford took here the gold metal. Why? Because this is the most malleable metal, so that he can obtain a thinnest sheet of metal. But the problem is the size of atom is very, very small. That's why, as the gold foil is the thinnest foil, but still it was actually 1000 atom layer thick. ये कितने 1000 atoms के layer thick थे. It was the thinnest, but still it was 1000 atoms layer thick. It's okay, but still this is the most malleable. That's why he took the gold foil. Clear? चलो अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की. What is this alpha particles? It is written here, this alpha particle is what? Doubly charged helium ion. It is what? Doubly charged helium ion. अब helium के बारे में तो पता है, this is the second element of our modern periodic table. Second element मतलब after hydrogen. So the atomic number of helium is 2, right? The atomic number of helium is 2. If the atomic number of helium is 2, that means it contains 2 electron and 2 proton, right? It will contain 2 electron and 2 proton. Now what will happen if we will remove this 2 electron from here? अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, so definitely this helium atom will become charged and now we will name this as helium ion, क्योंकि ये atom नहीं रहा अभी. Why? Because we removed 2 electron from here, right? Okay. So as we are removing 2 electron from here, so definitely helium will have 2 positive charge, क्योंकि यही तो बचा है इसके पास, 2 proton only. That's why, right? So this is named as doubly charged helium ion. I hope it is clear to you. This is what? Doubly charged helium ion. And if we talk about the mass of this, so it is equal to 4 AMU, 4 atomic mass unit. So this is the mass of helium ion, and this is helium doubly charged ion that we are taking here, that he took here for his experiment.
now the question comes is, from where this alpha particle will come, from where we will obtain this doubly charged helium ion. Okay, so again just come to the modern periodic table. We have total 118 elements. Among these all, if we consider the heavier elements means to say वैसे एलिमेंट जिनका मास ज़्यादा है, that all heavier element is considered as the radioactive element. Okay, why? You know, because these all elements have a tendency to emit अल्फा बीटा एंड गामा रेस कंटिन्यूसली. इनका ये नेचर है, दे हैव अ टेंडेंसी, दे हैव अ नेचर टू एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेस continuously. Now what is this alpha beta and gamma rays? These are basically the electromagnetic rays which is emitted by these all sample. As they emit alpha beta and gamma rays continuously, so we name that kind of sample or that kind of substance as radioactive substance, right? तो आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैवी मास वाले एलिमेंट हैं उनको देखते हो, so that all are radioactive in nature because they all have a tendency to emit alpha beta and gamma rays continuously. That's why. So from there only we can obtain this doubly charged helium ion, which is also named as alpha particle. Clear? Okay. Now it was expected that the alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है, एक गोल्ड शीट ली है, गोल्ड की थिन शीट ली है और क्या किया, he just bombarded the alpha particles over there. Now we already know the nature of alpha particle. It is what? The positively charged particle, right? Now we already know the model of an atom according to J.J. Thomson. क्या पढ़ा model of atom हमने कि पूरा का पूरा atom जो है वो positively charged sphere है. Now just imagine this atom is positively charged sphere. This alpha particle is also positively charged. So definitely जब आप alpha particles को इस atom पे bombard करोगे तो क्या होने वाला है? It will deflect, right? ये alpha particles क्या होंगे? Deflect होंगे. Why? Of course, because both are positively charged and we know like charges always repel each other, right now? Okay, so this is the reason only whenever this alpha particle will be bombarded over the atom या फिर over the gold foil, so of course there should be some deflection. Why? Because both are positively charged. तो ये उनका expectation था. Second expectation was, as helium atom is 4 unit mass, of course it is quite heavier if you are going to compare it with one proton charge. तो of course इनके पास 4 unit charge है और एक प्रोटॉन के पास तो एक ही चार्ज होता है. So उन्होंने एक्सपेक्ट तो किया था डिफ्लेक्शन but not that much. He just observed that there should be some deflection but the deflection will be not that much. Why? Because the alpha particle is quite heavier. So ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की थी. ये सारे एक्सपेक्टेशन उनके क्यों थे? ऑफ कोर्स बाय ऑब्जर्विंग द J.J. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बिकॉज उनके दिमाग में अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? जो J.J. थॉमसन ने दिया था. बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सो द रिजल्ट वॉज टोटली डिफरेंट. द रिजल्ट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल दैट एक्चुअली ही वॉज एक्सपेक्टिंग. तो देखते हैं क्या रिजल्ट है उनके. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं. दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच इज डन बाय अर्न्स्ट रुदरफोर्ड टू ऑब्जर्व व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अरेंजमेंट इनसाइड द एटम. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले वन बाय वन each and every part we are going to discuss here. Okay, at first we are taking here a box. As you can see here, this is a box. This box is basically made up of lead. Now why we are taking here this lead box? The reason behind that, this sample that we are going to take here, it is radioactive in nature. And हमने भी पढ़ा what is the property of radioactive substance. The property of radioactive substance is basically what? It continuously emit alpha, beta and gamma rays, right? So definitely when we are going to keep here, so it will emit alpha, beta, gamma rays.
तो ये रेज जो है ये कहीं भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, आई मीन कहीं भी इमिट होंगे इन ऑल डायरेक्शन, बट वी एक्चुअली वांट टू यूनिडायरेक्ट इट। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसे यूनिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी ये सारे रेज एक ही डायरेक्शन में आए, कंसंट्रेट हो। सो उसके लिए वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉक्स हियर। दिस लेड बॉक्स विल एक्चुअली हेल्प टू यूनिडायरेक्ट दीज ऑल रेज। ठीक, ओके। तो जो भी सैंपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, द रेडियो एक्टिव सैंपल दैट वी आर टेकिंग, व्हाई वी आर टेकिंग, ऑफ कोर्स यहीं से हमें अल्फा रेज मिलने वाले हैं, राइट? ओके, सो वी आर टेकिंग दिस सैंपल हियर, इट इज केप्ट अंडर द लेड बॉक्स सो दैट जो भी अल्फा रेज यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो यूनिडायरेक्ट हो जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, कंसंट्रेशन फोकस्ड हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। नाउ let's talk about this sample. This sample is radioactive. Of course we are taking here this sample only so that it can emit the alpha rays which we are going to bombard over this gold foil, right? चलो ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की। This screen is named as detector or the electromagnetic screen. ये स्क्रीन जो है it is made up of zinc sulfide. The nature of the screen is, जो भी रेज हम लोग यहाँ से बॉम्बार्ड कर रहे हैं ना, this screen will able to detect these all things. ये जो स्क्रीन है ये सारे रेज को क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। That's why we are taking the screen here. Now अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर। सबसे पहले ये गोल्ड फाइल जो कि स्क्रीन के बीच में रखी हुई है। नाउ वी आर बॉम्बार्डिंग दिस अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम दिस सोर्स विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब ये अल्फा पार्टिकल्स जब बॉम्बार्ड होंगे तो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन, उनका एक्सपेक्टेशन क्या था, जो भी रेज आ रहे हैं इट शुड दिस ऑल रेज शुड डिफ्लेक्ट लाइक दिस, नॉट दैट मच डिफ्लेक्शन, क्योंकि लार्ज डिफ्लेक्शन तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। वाई? बिकॉज जो हमारे हीलियम एटम है वो क्वाइट मासिव होते हैं, दैट्स वाई। ओके, सो डिफ्लेक्शन उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, नॉट दैट मच बट डिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज इज गोइंग स्ट्रेट। अब ये तो काफी अमेजिंग है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये डिफ्लेक्ट होने चाहिए, बट बहुत सारे रेज जो है वो क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग ही ऑब्जर्व्ड हियर, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टू थिंग्स। थर्ड थिंग यू ऑब्जर्व दैट अगर मान लो 12,000 रेज को हम लोग बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक ऐसा रे है विच विल कम बैक और टर्न्स बैक टोटली। सो दीज ऑल थिंग्स ही ऑब्जर्व्ड हियर। तो इनकी जो भी ऑब्जर्वेशन है इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि कुछ रेज जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ रेज जो है वो टर्न बैक हो रहे हैं और कुछ रेज जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये है हमारा एक गिफ्ट जिसमें हम लोग अर्न्स्ट रुदरफोर्ड के एक्सपेक्टेशन और अर्न्स्ट रुदरफोर्ड के एक्चुअल रिजल्ट को देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट वॉज द रेज शुड बी डिफ्लेक्ट विथ स्मॉल डिफ्लेक्शन क्योंकि हैवियर पार्टिकल हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ द रेज गो स्ट्रेट एंड वेरी फ्यू ऑफ देम जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और उनका जो एक्चुअल रिजल्ट था दैट वॉज टोटली डिफरेंट। सो उसके बाद सबसे पहले हम लोग उनके ऑब्जर्वेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं डिटेल में सारे पॉइंट्स, बिकॉज वी नीड टू लर्न दीज ऑल पॉइंट्स इन एग्जाम, यू हैव टू राइट दीज ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर से फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, राइट, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल विथ अ वेरी स्मॉल एंगल, यानी डिफ्लेक्शन हो रहा था बट थोड़ा थोड़ा। एंड सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, मतलब कि पूरी तरह से वापस आ गए। आप इमेजिन करो, आप एक वॉल के सामने खड़े हो, एक बॉल ले रहे हो, थ्रो कर रहे हो वॉल पर और वापस आपके पास आ जा रहा है। कुछ ऐसा ही रिजल्ट उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। ये तीनों रिजल्ट टोटली अलग अलग थे। अगर मान लो डिफ्लेक्शन ही होना था तो सारे रेज डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, मान लो सीधे ही जाने थे तो सारे रेज सीधे जाने थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ रेज सीधे जा रहे हैं, कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ रेज तो पूरी तरह से टर्न बैक हो रहे हैं। सो आफ्टर हिज ऑब्जर्वेशन व्हाट ही कंक्लूडेड, तो इनके कंक्लूजन के लिए हम लोग पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। आप इमेजिन करो, आप एक ओपेक वॉल, एक पूरी तरह से ब्लैंक वॉल है, वहाँ पर खड़े हो और बॉल को थ्रो कर रहे हो। आंखें खुली है, बंद है, डजेंट मैटर, जितनी बार आप बॉल को फेंकोगे इट विल टर्न बैक टू यू, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं।
This is a fencing that you can see here. Generally you can see this kind of fencing in garden or farms. इन सब जगहों पर हम लोग इस तरह की fencing देख सकते हैं. ठीक है, चलो अभी ये बच्चा जो है, this boy is tending to throw this stone from in between this fencing. तो क्या होगा, of course वो अगर निशाना लगाएगा तो ये बॉल जो है या जो स्टोन है वो डेफिनेटली इसके बीच में से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं. Now just let him throw this ball. What will happen? Maybe sometime this ball will go straight. जा सकता है क्योंकि वो फेंसिंग के बीच में से जा रही है तो स्ट्रेट जाएगी. मे बी समटाइम चूंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ही इज टोटली ब्लाइंड नाउ, तो डेफिनेटली फ्यू स्टोन्स जो है वो इससे टकरा सकते हैं बाय दिस फेंसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन मे बी इट विल स्ट्राइक इट एंड इट विल डिफ्लेक्ट बाय सम स्मॉल एंगल एंड मूव हियर एंड देयर, राइट. एंड समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि दिस स्टोन विल जस्ट टोटली kept over here and will turn back to him. ऐसा भी हो सकता है, राइट. सो ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने देखे. तो इसके बाद हमने क्या कंक्लूड किया, ऑफ कोर्स व्हेन दिस स्टोन इज गोइंग स्ट्रेट दैट मीन्स कि वो खाली जगह से पास होके जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग स्ट्रेट, राइट. अगर ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है तो मतलब इससे टकरा रही है वो और फिर आगे जा रही है. ठीक है, एंड अगर ये टर्न बैक हो रही है, सो देयर इज सम ओपेक सब्सटेंस, द हेवी ओपेक सब्सटेंस विच एक्चुअली डज नॉट अलाउ द स्टोन टू मूव फर्दर. ठीक है, तो इस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पर देखा, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम लोग इस मॉडल में पढ़ेंगे अभी. सो व्हाट ही कंक्लूडेड, ऑब्जर्वेशन तो सीख लिया. क्या सीखा, पहला ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे रेज जो है वो स्ट्रेट जा रहे थे. सो इफ मोस्ट ऑफ द रेज आर गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल, सो इट कंक्लूड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, राइट. देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम. सो दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट ही गेव आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमने क्या देखा, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, दैट एक्चुअली टेकिंग वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम, दैट्स व्हाई इट डिफ्लेक्ट, राइट. क्योंकि अगर पूरा का पूरा एटम ही पॉजिटिवली चार्ज होता तो सारे के सारे रेज बाउंस बैक होने चाहिए थे, डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे. बट यहाँ पर कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मीन्स टू से ऑफ कोर्स वहाँ पर प्रोटॉन तो है, बट वो प्रोटॉन कहाँ पर है, बहुत ही छोटे से एरिया में लिमिटाइज है, राइट. ओके, एंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. अगर वो पूरी तरह से टर्न बैक होके आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इंडिकेट दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज and the masses of gold atom were concentrated in a very small volume. If it turns back, that means what? सारा का सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है. That's why this high speed alpha particle which is quite heavier also will turn back. तभी हो सकता है ना जब उनके सारे के सारे प्रोटॉन एटम के जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड हो. So ultimately he concluded three things here. अगर रे स्ट्रेट जा रही है तो देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस. अगर रे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है वो बहुत छोटी जगह ले रहा है इनसाइड द एटम. एंड अगर कुछ रेस टर्न बैक होके आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल कंसेंट्रेशन है इट कंटेन ऑल द प्रोटॉन एट ए टाइम, दैट्स व्हाई इट इज बिग एनफ और इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू टर्न बैक दैट अल्फा पार्टिकल विच इज फास्टली मूविंग, विच इज बॉम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉइल, राइट. ओके, सो दीज आर द कंक्लूजन. आफ्टर दैट, ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, द मॉडल विच इज गिवन बाय अर्न्स्ट रुदरफोर्ड. सो द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं अभी, जो अर्न्स्ट रुदरफोर्ड ने दी थी. सबसे पहला, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम. क्या बताया, एटम के सेंटर में सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एंड ही नेम दैट एज न्यूक्लियस. क्या नाम दिया उन्होंने इसे, न्यूक्लियस. नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स हियर ओनली. बिकॉज हमने पढ़ा अगर वहीं से सब रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, बाउंस बैक होके वापस आ रहे हैं, इसका मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहीं पर कंसंट्रेटेड है. कहाँ पर, इनसाइड द एटम, इन सेंटर ऑफ द एटम विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस नेम इज डिफाइंड by, of course, Ernst Rutherford only. The electrons revolve around the nucleus in a well-defined orbit
एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. प्रोटॉन तो बता दिया उन्होंने. एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, मीन्स टू से इन अ फिक्स्ड पाथ, राइट. Okay, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. अगर हम पूरे एटम के साइज को बनाते हैं, सपोज आई एम मेकिंग अ साइज ऑफ एन एटम लाइक दिस, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज हम लोग ऐसे पॉइंट साइज का बनाएंगे. ही जस्ट कंपेयर द मॉडल लाइक दिस, यानी बहुत ही छोटा सा पार्ट है पूरे के पूरे एटम के अंदर विच इज डिफाइंड एज न्यूक्लियस. इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द साइज ऑफ एन एटम, एंड ऑल द मास ऑफ एन atom is concentrated here only. Okay, so these all things he explained in his model. अब देखते हैं उनका मॉडल कैसा दिखता है. It looks like this only because यहाँ पर हमने देखा, see as you can see here, what we can see, of course the nucleus first, and here all the proton, all the positive charges are concentrated. The next thing is about electron. So electrons are revolving here in a fixed orbit, in a fixed path, right? So this was the model which is given by which is given by Ernst Rutherford. अब ये अर्न्स्ट रुदरफोर्ड जो है, इनका जो मॉडल था इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी, बिकॉज वी नो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोर्ड्स मॉडल, राइट. ओके, सो बोर्ड्स मॉडल को हमने अगर चुना तो डेफिनेटली वी जस्ट लेफ्ट दिस मॉडल ऑल्सो. सो वाई वी लेफ्ट द रुदरफोर्ड मॉडल, पहले ये पढ़ लेते हैं. सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल? सिर्फ रुदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने क्या बताया? ठीक है, चलो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, कैसे अरेंज्ड है, ही एक्सप्लेन दैट ऑल द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर एंड ही नेम दैट ऑल्सो एज न्यूक्लियस, राइट. एंड ही एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. Now let's talk about electron. If this electron revolved in a fixed orbit, then of course after revolution के लिए उनको accelerate करना पड़ेगा, घूमने के लिए तो acceleration चाहिए. And if this will accelerate, so of course acceleration के time में it will radiate energy also, because अगर वो accelerate कर रहे हैं तो energy तो चाहिए होगी, right? So it will release or it will emit or it will radiate some energy also, right? When this electron will revolve in this orbit, then of course अगर ये बहुत fastly move कर रहे हैं तो it will radiate energy also. And if this electron will radiate energy, तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा the electron will lost all its energy, right? और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा, so what will happen? The proton that is present inside the nucleus, which is in the center of atom, will attract the electron towards itself, and जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते जाके प्रोटॉन में कोलैप्स हो जाएगा. And if it will happen, then definitely it will never explain the stability of an atom. So ultimately he gave a model, he explained the arrangement of electron and proton, but he was not able to explain the stability of an atom. Why? Because according to him the electrons is moving or revolving in a fixed orbit, and of course when it will revolve here, so it will lose energy, and अगर ये energy lose करेंगे तो it will collapse with nucleus or proton. So of course this model also not explain the stability of an atom. That's why we left this model. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं. चलो एक बार फटाफट इसको रिकैप करते हैं. Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in a fixed path. That path is named as what? Orbit. Electrons revolve at a very high speed around the nucleus in this orbit. And of course any particles if in a circular orbit will move or just move on, so definitely it will what? Accelerate, and after acceleration उसकी जो energy है वो क्या हो जाएगी? Loss हो जाएगी. So if this were so, the atom should be highly unstable. So ultimately we can say the Ernst Rutherford was actually not able to explain the stability of an atom. So that's why we left this model, or at the end of this chapter we are going to discuss about Borsbury model. See, you can see in this particular GIF, if this electron is moving in a orbit in a fixed path, so of course during this revolution it will lose some energy, and after losing this energy ये क्या हो रहे हैं? देखो जाके सीधे न्यूक्लियस में
कोलैप्स हो जा रहे हैं, ताकि सीधे न्यूक्लियस में कोलाइड हो जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हैपन. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इट विल बी get attracted, so electron will get attracted here and the whole model of an atom will collapse. So that's why we left this model also. So in next video we are going to discuss about the Borsbury model. So thank you for watching this video and in next video हम लोग बात करेंगे about Borsbury model. तब तक के लिए bye bye.